جبکہ چین کی وزیر خارجہ، وزیر تجارت اور دیگر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ دونوں وزراءاعظم کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ چینی وزیراعظم کی صدر مملکت، وزیراعظم اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ چین کے وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے گیم چینج ثابت ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد سے معاشی اور علاقائی روابط کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اہم ایونٹ ایس سی او کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ ایس سی او کے لیے اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس علاقائی تعاون کے حوالے سے اہم فورم ہے، اس سے معاشی اور علاقائی روابط کو فروغ ملے گا۔ ایس سی او سمٹ کی سائیڈ لائن پر سربراہان مملکت کی 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ عطا اللہ نے مزید کہا، پاکستان خطے میں تجارت اور امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے آزادانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ابھر رہا ہے۔ ملائیشیا کی وزیر اعظم کا کامیاب دورہ رہا۔ دورے میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستانی برآمدات بڑھانے کا یقین دلایا ہے۔ چاول، حلال گوشت سمیت برآمدات سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ وزیراعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ شرکاء کی آمد و رفت کے دوران شہریوں کو کم سے کم تکلیف پہنچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناح کنونشن سینٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو چیئرمین سی ڈی اے اور وزارت خارجہ کے حکام نے تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ شرکاء کی آمد و رفت کے دوران شہریوں کو کم سے کم تکلیف پہنچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں چین، روس، بیلاروس، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ ایس سی او میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم اور چیئرمین کابینہ ترکمانستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سائیڈ لائنز پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں معیشت، تجارت اور ماحولیات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان آرمی ٹیم نے ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقیں 3 سے 14 اکتوبر تک برطانیہ ویلز میں جاری رہیں۔ رواں برس ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول کے 65ویں برس مکمل ہو چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے ہمیشہ ملک کا پرچم سر بلند رکھا ہے۔ پاکستانی ٹیم کا گولڈ میڈل پاک فوج اور پوری قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ مشقوں میں 42 ممالک کی 128 ٹیموں نے حصہ لیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی ٹیم نے 48 گھنٹوں میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول مشق نے اپنے پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے دستوں کو کٹھن اور دشوار گزار ماحول میں جنگی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑا۔ یہ جیت پوری قوم اور پاک فوج کے لیے ایک قابل لمحہ فخریہ ہے۔ چیف جسٹس کے حلف برداری کی تقریب 25 اکتوبر کو ایوان صدر میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، وفاقی وزراء سمیت دیگر شخصیات شرکت کریں گی، جبکہ صدر آصف زرداری نئے چیف جسٹس پاکستان سے حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب 25 اکتوبر کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ وفاقی حکومت نئے چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کا نوٹیفیکیشن بھی جلد جاری کرے گی۔
खबर देंगे, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मिडल ऑर्डर बैटर बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बैटर बाबर आजम को आराम देने की तजवीज़ के साथ सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्के तब्दीलियों से चेयरमैन पीसीबी को भी आगाह कर दिया है। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी का अमल रवां सीरीज़ के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इतफाक़ भी कर लिया गया है। खिलाड़ियों के फिटनेस का अमल भी रवां सीरीज़ के ख़त्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। इजलास में सिलेक्शन कमेटी के अरकान और मेंटोर्स की तजवीज़ भी सामने आ गई हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है बानी पीटीआई इसराइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने के लिए सरगर्दा हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान में सियासत नहीं बल्कि सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात देखिए कराची से इस रिपोर्ट में। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का एक बयान में कहना था कि इमरान खान के तल अबीब के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से एससीओ को सबूताज करने की मजबूत कोशिशों का हिस्सा है। पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मफादात पर समझौता है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि माजी में भी इमरान खान पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे। पीटीआई क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैदा है। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद अपने बयान में कहा कि पीटीआई का थिंक टैंक इस वक्त तल अबीब में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पीटीआई के अहम पॉलिसी मुशीर इजराइल में बैठे हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए सरगर्म है। पीटीआई को तल अबीब से पॉलिसियां, हिदायत और हिमायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्की इदारों को कमजोर करके सहयूनी मफादात के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि नारा आपने लगा दिया है कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी नारे लगाते थे, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। हम भी पागलों की तरह लगे हुए थे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, रहनुमा को चाटना है हमें, अगर मंजिल नहीं मिले। हमें मंजिल चाहिए भाई। पीटीआई पर एंटी स्टेट होने का इल्ज़ाम लगता है। उन्होंने कहा 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से इस इल्ज़ाम को तक़वियत मिलती है। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सियासत से इख्तलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। हमारी सियासत और शिकायत मुल्क के वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत है, जमहूरियत है। उन्होंने कहा, किसी मुल्क की फ़ौज को ख़त्म कर दिया तो उन ममालिक के हालात हमने देखे हैं। पाकिस्तान का मौशी मसला किसी से छुपा हुआ नहीं। हुकूमत और रियासी इदारे मौशी हालात बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीटीआई का 15 अक्टूबर के एहतजाज का ऐलान मुल्क के मफाद में नहीं, सियासत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान ही आखिरी उम्मीद है। 15 अक्टूबर को पीटीआई इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल के मामले पर पुलिस की जानिब से टैक्सिला, रवाद, गोजर खान और कलर सैदा में छापे मारे गए। रात गए पीटीआई रहनुमा राजा बशारत के घर पर छापा मारा गया, जबकि साबिक एमपीए वहीद कासिम, आरिफ अब्बासी और राशिद हफीज के घरों पर भी छापे मारे गए। पुलिस ने छापों में 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं है। हुकाम ने बताया कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करने पर फूट पड़ गई है। पार्टी सीनियर लीडरशिप ने बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ़ हसन भी 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर किया जाएगा। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी पीटीआई से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की भी बात होने लगी है। पार्टी में शहबाज गिल, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरद ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद हैं। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे, बाद में हामी हो गए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जजेस के जरिए जजेस की तैनाती का अमल ख़त्म करना चाहते हैं और इस अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को बराबरी का दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार करने के लिए अपोजिशन की जमात JUI से बातचीत का सिलसिला जारी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा इंटरनेट पर शेयर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल अदालती इस्लाहात के एजेंडे को मुकम्मल करने की तजावीज़ है। वो तमाम विफाकी इकाइयों की यकसा नुमाइंदगी के साथ आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो जजेस के जरिए जजेस की तैनाती का अमल खत्म करना चाहते हैं और इस अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को बराबरी का दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार करने के लिए अपोजिशन की जमात JUI से बातचीत कर रहे हैं। सियासी जमातों के वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर मुश्तरका मुसव्वदे के लिए पुरउम्मीद हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो तरमीम का मुसव्वदा बेहतर करने के लिए बामानी अवामिल रद्द अमल का खैर मकदम करते हैं। उनका कहना था कि कायदे आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि विफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है मुसलमानों का आज जो हाल है वो आपस की लड़ाई झगड़ों की वजह से है। मारूफ मजहबी स्कॉलर ने लाहौर में तारीखी बादशाही मस्जिद में इज्तिमा से खिताब में कहा, अगर हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कुरान इंसानियत को सुकून फराहम करने के लिए हल देता है। उन्होंने कहा, तारीखी बादशाही मस्जिद में खिताब करके खुश हूँ, पाकिस्तानियों की वालिहाना मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ। मुसलमान तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तमाम इंसान अल्लाह की रस्सी को थाम कर आपस में तकसीम ना हो। इस्लामी स्कॉलर का कहना था, मुसलमान अगर बाहमी तकसीम से बचें तो दुनिया की ताकतवर कुव्वत बन सकते हैं। दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब से ज़्यादा है। फ़लस्तीनियों का कत्ल दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा है। हम अल्लाह पर यकीन पुख्ता रखें तो हम दुनिया भर में नंबर 1 होंगे। साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला ने चंद रोज़ कबल शाह फरमान को सीनियर मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा, सीनियर मुशीर बनाने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। शाह फरमान का कहना था कि बानी PTI की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना है। अफसोसनाक खबर है, जिला करम के 2 कबाइल के दरमियान तसादुम के बायस फायरिंग के तबादले में जाबहक होने वालों की तादाद 15 हो गई है, जबकि मजीद 7 जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला करम जावेद उल्लाह महसूद का कहना है, हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कबाइल के दरमियान फायरिंग का वाक़या कुंज अली जई में पेश आया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़े में 11 अफराद जाबहक और 6 जख्मी हुए। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CTD जावेद उल्लाह का कहना है कि जिला भर में रास्ते महफूज बनाने और हालात मामूल पर लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक MNA और जरगा मेंबर पीर हैदर अली शाह ने कहा है कि जरगा मेंबरान कबाइल के माबैन अमन मुहाइदे के लिए पहले से ही मौजूद हैं। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक यह हादसा स्टेशन से रवाना होने के फ़ौरन बाद रेलवे यार्ड में पेश आया। खुशकिस्मती से बोगियां ट्रैक से उतरने के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के फ़ौरन बाद रेलवे का तकनीकी अमला मौके पर पहुंच गया और बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने का काम शुरू कर दिया गया। बोगियां ट्रैक से उतरने की वजह से अप और डाउन ट्रैक की रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची एक्सप्रेस की पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों को अलग करके अप ट्रैक को बहाल कर दिया गया। इसके नतीजे में मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनें दोबारा चल पड़ी और मुसाफिरों की आमद रफ्त बहाल हो गई।
अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें कि महकमा दाखिला सिंध ने कराची में 13 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। सुबह महकमा दाखिला की जानिब से कराची में दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 से 17 अक्टूबर कराची में 5 अफराद से ज़ायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी होगी। कराची में 5 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज कराची में मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से एक ही रोज में एहतजाज की कॉल पर किया गया है। एक ही रोज में मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से एहतजाज दौरान नुक्स अमन का खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कुदरती आफात से निमटने के लिए शऊर, तैयारी और मौसर मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। कुदरती आफात के ख़तरात में कमी के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था, पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हंगामी हालात की मनसूबा बंदी कर रही है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस और मोटर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा PDMA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों के कंट्रोल रूम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला का कहना था, आफात के ख़तरात से बेशतर मौसर इक़दाम करके आवाम को महफूज बनाना है। बेहतरीन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी की शराकत दारी और आगाही मुहिम कलीदी किरदार अदा करती हैं। कुदरती आफात के ख़तरात कम करने के लिए आने वाली नस्लों को महफूज और मुस्तहकम मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन दो दरिया में छाती के कैंसर के आलमी दिन के मौके पर साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके क्लिफ्टन दो दरिया में छाती के कैंसर के आलमी दिन के मौके पर साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद छाती के कैंसर की आगाही फराहम करना है। दुनिया भर में बढ़ते हुए छाती के कैंसर से बचाव और इस मर्ज से आगाही के लिए कराची में वॉक और साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। तकरीब में खवातीन में बढ़ते इस मर्ज के दिन की मुनासबत से आगाही मुहिम में पिंक शर्ट्स पहनकर शहरियों ने रेस में भरपूर शिरकत की। तकरीब में शामिल लोगों का कहना था, पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। मर्ज से आगाही जरूरी है। पाकिस्तान में हर साल छाती के कैंसर के 14 लाख केस रिपोर्ट होते हैं और जबकि अमवात की शरह सालाना 4.5 लाख तक जा पहुंची है। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे खवातीन अपने आप का चेकअप नहीं करवाती। ठीक है, ये एक बात को बावर करवाया जा रहा है कि आप सारी खवातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जितनी भी हैं, वो अपना हेल्थ पे कॉन्शियस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जाके वो अपना खुद ही मंथली या 15 डेज में चेकअप करती रहे। अगर उन्हें कुछ भी ऐसा फील होता है वो जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं। के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस फैलाई जाती है और इससे बहुत सारे साइकिलिस्ट आते हैं यहाँ पे। शहरियों ने मजीद कहा, ऐसे प्रोग्राम कराची में होने चाहिए। खवातीन को चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं ताकि वो इस मर्ज से आगाही हासिल कर सके। रेस का आगाज क्लिफ्टन दो दरिया ईमार टावर से हुआ, जो दो दरिया से मुंसलिक सड़कों के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए ईमार टावर दो दरिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। साइकिलिस्ट और शुरका ने कहा, कैंसर का इलाज मौजूद है, लेकिन बर वक्त इलाज और एहतियात और मर्ज से आगाही जरूरी है। मुहलिक मर्ज से निजात के लिए पहले ही तशखीस हो जाए तो इलाज आसान हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ शामिर राजपूत, NTN न्यूज, कराची। सिंध पुलिस के जवानों के लिए अपना घर स्कीम का ऐलान कर दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है, ख्वाहिश है हर पुलिस जवान का अपना घर हो। तफसीलात देखिए इम्तियाज शाह की इस रिपोर्ट में। पुलिस दरबार का पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी IG सिंध गुलाम नबी मेमन थे। उनके हमरा पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो भी मौजूद थे। इस मौके पर MD NFP साबिर हुसैन का कहना था कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन का क़याम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है। उन्होंने कहा कि मैं कराची का बेटा हूँ, 27 साल बाद वापस आया हूँ और अपने साथ सिंध पुलिस की फलाह के मंसूबे भी लाया हूँ। उनका कहना था कि हमारा घर स्कीम में मुख्तलिफ बिल्डर्स हमारे साथ हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। प्लॉट
के लिए पहली डाउन पेमेंट पुलिस फाउंडेशन करेगी, जबकि किस्तों पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करने का आइडिया भी आईजी सिंध का है। इस स्कीम का इफ्तिताह भी आईजी सिंध करेंगे। सिंध पुलिस की तारीख में पहली बार कंपनीज की इलेक्ट्रिक बाइक पुलिस मुलाजमीन को आसान अफसाद पर बिला सूद फराहम की जाएंगी। पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में पहली 2000 प्लॉट्स में एनपीएम 50,000 रुपए की शराकत करेगी। पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में एनपीएफ का अपना अस्पताल, आईबीएम यूनिवर्सिटी और टीसीएफ स्कूल भी होगा। फाउंडेशन का मकसद इंस्पेक्टर रैंक तक के मुलाजमीन को मुराद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में पुलिस मुलाजमीन की फलाह के लिए मजीद प्रोजेक्ट पर भी काम होगा। उन्होंने कहा एनएफपी को पुलिस हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने कहा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से सिंध पुलिस के लिए फलाही इक़दामात पर साबिर हुसैन और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एनपीएफ की जानिब से सिंध पुलिस की फलाह के इक़दामात प्रोजेक्ट्स को भी सराहता हूँ। ये कहना था आईजी सिंध का। मार्केट के लिहाज से सिंध पुलिस को आधी कीमत पर फराहमी बेहतरीन इक़दाम है। आईजी सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्लॉट की बुकिंग पर 50,000 की अदायगी एनएफपी की जानिब से करना काबिल तारीफ और काबिल सताइश अमल है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि हर पुलिस जवान का अपना घर हो। फौज की तरफ पर हम भी सिंध पुलिस को बलासूद मोटरसाइकिलें दें। ये कहना था आईजी सिंध का। आईजी सिंध की जानिब से एनएफपी साबिर हुसैन को अजरक और फूलों का तोहफा भी पेश किया गया। कराची की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी नईम शेख ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी हिदायत पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया है और इससे मुंसलिक तमाम सड़कों का जायजा भी लिया है। देखते हैं नुमाइंदा NTN मोहसिन अंसारी की ये रिपोर्ट। कराची की सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुतहरिक दिखाई दे रही है। मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी नईम शेख ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से मुंसलिक तमाम सड़कों का दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इस शहर के रेवेन्यू में अच्छा खासा हिस्सा मिलाता है, तो यहाँ के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीहात पर निकाला जाए। जिस सड़क को नए सिरे से तामीर करना है उसे तामीर करें और जो मरम्मत के काबिल हैं उनकी जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए और सड़कों का जाल बिछाने से पहले सीवरेज के निजाम को भी बेहतर बनाएं ताकि आइंदा आने वाली बारिशों में सड़कें खराब ना हो और तालाब का मंजर ना पेश करें। नईम शेख ने कहा कि किसी सूरत कोई कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी गलती का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के सी व्यू साहिल पर अवामी तफरीह के हुकूक की पामाली। सी व्यू क्लिफ्टन पर कुर्सियां रखकर फी कुर्सी 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची शहर की रौनकों में एक नुमाया मकाम रखने वाला सी व्यू क्लिफ्टन हालिया दिनों में एक नए तनाजे का मरकज बन गया। साहिली समंदर पर अब धड़ल्ले से गैर कानूनी कारोबार किया जाने लगा। प्राइवेट लोग साहिल पर कुर्सियां लगाकर 100 रुपए फी कुर्सी वसूल कर रहे हैं। अब खुले आम गैर कानूनी कारोबार ने कई सवालात को जन्म दे दिया। सवाल ये है कि प्राइवेट अफराद किसके मातहत यहाँ काम कर रहे हैं? इतने बड़े साहिल पर ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ कौन करवा रहा है? किस इदारे ने प्राइवेट अफराद को इसकी इजाजत दी है? क्या ये साहिल मेयर कराची मुर्तजा वहाब के तहत या कंटोनमेंट बोर्ड के जेर निगरानी है? ये सूरत हाल फौरी तवज्जो के मुतकाजी है। अवामी नुमाइंदों और मुतलका इदारों को इस मामले पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अवामी तफरीह की जगह को बचाया जा सके। अगर ऐसा ना किया गया तो अवाम के हुकूक की पामाली का ये सिलसिला जारी रहेगा। ये साहिल एक अवामी तफरीह मकाम है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ अवाम के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करे। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जगह पर लकड़ी या सीमेंट की बेंचें फराहम करे। प्राइवेट अफराद की जानिब से किराया वसूल करना एक बड़ी नाइंसाफी है जो कि अवाम के हुकूक की पामाली है। खबर दें आपको, गजा में होने वाले इसराइली फौज के मुजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा किया गया है, जबकि ग्लासगो और आयरलैंड में मुजाहिरीन ने इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया है। फ्रांस में फ़लस्तीनियों और लबनानियों से इजहार यकजहती की गई है। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं, जबकि स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया है। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में भी हज़ारों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहिरीन ने हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर गजा जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा कर लिया। अमरीकी शहर लास वेगास के एक शख्स ने अपने घर के अंदर ही सीढ़ियों से चढ़कर और उतरकर माउंट एवरेस्ट के बराबर फासला
23 घंटे में तय करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। शॉन ग्रेसले का यह कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। शॉन ग्रेसले को 29,031 फुट का फासला तय करना पड़ा। अपने इस कारनामे के लिए ग्रेसले ने लाइव स्ट्रीमिंग की जो 22 घंटे 57 मिनट और 2 सेकंड तक जारी रही। शॉन ग्रेसले ये रिकॉर्ड कायम करने पर बहुत खुश हैं। उसका कहना है, पहले किसी ने ये नहीं कहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तजुर्बा किया जाए। शॉन ग्रेसले लोगों को मायूस और खुदकुशी से बचाने के मिशन की राह पर गामजन हैं। कोविड के दौरान लोगों में मायूसी और बेजारी बढ़